Let us start from the forms of nitrogenous wastes, which we have already studied, like ammoniotelic, ureotelic, or uricotelic. We have studied about it earlier in previous chapters. So, what is ammoniotelic? Those organisms which release ammonia as a form of excretory product. Those organisms will be called as ammoniotelic, and the phenomena will be called as ammoniotelic. Okay, and the same way like ureotelic also and uricotelic also. Ureo means those organisms which will release urea as their nitrogen excretion product, and those organisms which will release uric acid as their nitrogenous excretory product, they will be called as uricotelic. Okay, yeah, uricotelic animals, and phenomena will be called as uricotelic. So these three things are very simple to remember, because it is we have already revised this one. So quickly, forms of nitrogenous excretion. Depending upon the nature of excretory product, animals exhibit different processes of nitrogen excretion. What are these? Ammoniotelic, ureotelic, and uricotelic. This is phenomena, and the organism which are doing, those organisms will be called as ammoniotelic, ureotelic, and uricotelic. Okay, ammonia is most toxic form of nitrogenous waste. It is most toxic. It requires large amount of water to get excreted, and it requires less energy to form. These three things about this ammonia. Okay. It requires large amount of water for its elimination. The organisms that excrete ammonia are ammoniotelic, and this process to eliminate ammonia is known as ammoniotelic. Examples may most of the aquatic animals are ammoniotelic, like bony fishes, aquatic amphibians, aquatic insects, whatever are there which are in aquatic forms, they will release their excretory product in the form of ammonia. Okay. So simple bony fishes, aquatic amphibians, aquatic insects, etc. Ammoniotelic is found in aquatic animals. This line is important. Next, we can see ureotelic. The process of excreting urea is called ureotelic. Animals which do not live in high abundance of water convert ammonia produced in the body into urea and release into the blood, which is filtered and excreted out as urine by the kidneys. This is done by amphibians, terrestrial amphibians, not aquatic ones, and humans, mammals, okay, and marine fishes. And then uricotelic, it will be done by the reptiles and birds. Okay, the process of excreting uric acid as nitrogenous waste product is uricotelic. Uric acid, being the least toxic nitrogenous waste, can be removed within a minimum loss of water from the body, and it is exhibited by reptiles, bird, land snails, and insects. What are the excretory organs? This part we have already studied throughout the chapter, like basically animal kingdom. What are the excretory products? It will show the evolution. Quickly we will see, go through it. Protozoans and amoeba directly excretory organ care, plasma membrane. Ctenophora, anal pore was there in form of ammonia because aquatic ctenophora is aquatic. Platyhelminthes, they have flame cells, remember, जिसको हम लोग प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं, अमोनिया के फॉर्म में रिलीज करता है. देन रोटिफर्स, ये भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ प्लैटिहेलमिंथेस ही है, ये फ्लेम सेल्स इज अ पार्ट ऑफ दैट ओनली. देन ये भी अमोनिया के फॉर्म में रिलीज कर रहा है. Nematohelminthes or roundworms, they have rennet cells. We have studied this one also. Ammonia and urea, both forms. Urea is basically done by earthworm. Annelida, they have metanephridia. And chlorogen cells. When you will get into that chapter, you will find it. Everything was there. Ammonia and urea के form में release करेगा. Then orthopoda, they will release in form of uric acid and ammonia. Whatever the aquatic insects will be there, they will release ammonia, and whatever the terrestrial insects are there, they will release nitrogenous waste in form of uric acid. Then mollusca, they have renal gland. Then echinodermata, they have tube feet or podia. Then chordata, we have protonephridia. Then after the chordata, the whole mammals and fishes and everything, the advanced system of excretory organ will get started. Okay. Now, human excretory system. This is, I'm telling you from the diagram only. Main things are there. First, what we have to study, this kidney. Then we have to study the ureter. Then urinary bladder, and then urethra. Okay. So one side diagram is given. Internal diagram is also given. So kidney is what? It is bean shaped, as you can see from the figure also, and it is situated between last thoracic and third lumbar. Position can be asked. You can mark it also. Levels of last thoracic and third lumbar. Last thoracic like T12 and third lumbar यानी L3. T12 and L3 के बीच में किसका पोजीशन है? किडनी का. And kidney is dorsally placed. Okay, it is being placed dorsally, and इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, medulla and cortex. We will see the internal structure in detail. So what happens whenever we take
eat food after the reabsorption, whenever we drink water also, or eat food after the reabsorption, what happens? These their pathways like this, they will move into the kidney. Then after this, filtration will occur. After filtration, whatever reabsorption has been done, after the reabsorption, whatever the excretory waste which we have to remove, it will move into the ureter. Then from ureter, it will go to the urinary bladder. From there, constriction of this urinary bladder and relaxation of the occurs, and whenever constriction will be there, no movement of urethra is there. Whenever relaxation will be there, then urethra will opens out and it will remove the nitrogenous waste product out of the body. Okay, so one by one we are going to cover this. Okay, first one is kidneys, reddish brown in color, bean shaped structure. Position is important, last thoracic, T12 and L3 के बीच में. Okay, and then these are close to the dorsal inner wall of abdominal cavity. Okay, then each kidney of an adult human measures 10 to 12 in length, itna width and itna thickness. This is not at all important line. Okay, then kidneys are mesodermal in origin. This can be asked, and they develop from mesodermal. Nephrostomes or mesomeres, वही सेम चीज की है, mesodermal in origin है. Position of kidney, these are located below the diaphragm on the left and right side. Where are they located? They are located just below the diaphragm or both the sides of the human body. Okay. Then right kidney is lower and smaller. You have to remember this line. Then the left kidney, because liver takes up so much space to the right side. राइट किडनी क्या है? स्मॉलर है और लोअर है. कहाँ से? लेफ्ट किडनी से. समटाइम्स असर्शन रीजन में ये बहुत बार पूछा जा चुका है. ठीक है, तो ये लाइन तुम्हें याद रखना होगा. जो हमारी राइट किडनी है, इट इज स्लाइटली लोअर. व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ लीवर. लीवर इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड, तो लीवर ही इतना बड़ा ऑर्गन है, इसके वजह से क्या हो जाता है, राइट किडनी का पोजीशन थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा नीचे हो जाता है. देन स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. स्ट्रक्चर ऑफ किडनी कैन बी स्टडीड अंडर टू हेडिंग, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल. एक्सटर्नल को हम लोग मेडुला बोलेंगे, इंटरनल को कॉर्टेक्स बोलेंगे. आउटर स्ट्रक्चर ऑफ ईट किडनी कॉन्वेक्स लेंस में होती है. इनर कॉन्केव सरफेस इज नॉच, जिसको हम लोग हाइलम बोल रहे हैं. इसके अंदर भी जो ये नॉच है ये हाइलम रहता है. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, इफ वी लुक फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, 3 लेयर्स कवर द किडनी. रीनल फेशिया यानी कि आउटर मोस्ट एडिपोज लेयर एंड द रीनल कैप्सूल यानी कि इनर मोस्ट लेयर. 3 लेयर है. उसके बाद कवरिंग प्रोटेक्ट द किडनीज फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स एंड इंजरीज. ये कवरिंग, किसी भी चीज की कवरिंग क्यों होती है? सबसे मेन बात, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के शॉक से और कोई इंजरी ना हो, इसी वजह से 3-4 जितनी भी कवरिंग किसी भी चीज की ह्यूमन बॉडी में है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंट करता है because of the injury and the reason of the external shocks. Okay, then internal structures. This diagram can be asked in exam. So see, you can see each and everything. This is renal column, the space between the pyramid structures. Then medullary pyramid, these are called as medullary pyramid. Then calyx is the pipe which is attaching these medullary pyramids to one another. Then renal artery is there, renal dorsal aorta we have seen. Then renal vein is there. Then this is ureter, जो पाइप नीचे जाती है. Then renal capsule first covering, then it is the inside covering cortex. Inside the kidney, ureter is expanded as a funnel-shaped cup-like cavity is called major calyces. Singular is calyx and cavity called pelvis. इसकी बात हो रही है क्योंकि ये कैविटी क्या है? ये कैविटी पेल्विस है. और ये एक सिंगुलर की बात कर लो कि ये एक क्या है? कैलिक्स है. ओके, द फ्री एंड ऑफ पेल्विस हैज नंबर ऑफ माइनर कैलिसेस. Medulla projects into the calyces as the conical processes called renal pyramids. अब इसकी बात करें कि इसके अंदर क्या है, मेडुला के अंदर क्या है, renal pyramids are there, जिसको हम लोग अभी एक पार्ट लेके पढ़ेंगे कि how the absorption and how the counter current mechanism of excretion has occurred. Okay, so microscopic structure also, each kidney is composed of numerous, nearly 1 million complexes. Tubular structure called nephron. Okay, functional unit of kidney is nephron, and these are nearly 1 million in number according to NCERT. Okay, these are functional unit of the kidneys. Then structure of nephron. This is the structure of a particular nephron. Here is the woman's capsule and glomerulus filtration, and they form GFR. Then they are having PCT, they are having DCT, they will be having leukophenial connecting duct, vas recta, each and everything. So it is the structure of a particular nephron, and it is if we take so from one calyx, if we take one calyx, the cortex part of the kidney, internal structure, and if we take one pyramid like structure, inside that pyramid like structure I am taking one nephron structure. Okay, one by one we will see what is PCT, what is DCT, what is efferent arteriole, everything. Okay, so
half of the parts remain in the cortex and half of them remains in the medulla. Abhi next, in the next slide also there is. So structure of nephron, Malpighian body or renal corpuscle. Glomerulus along with Bowman's capsule is called Malpighian body or renal corpuscles, which filter out large solutes from the blood and delivers small solutes to the renal tubule for modification. Means Malpighian body is the combination of glomerulus also and the Malpighian tubules, Bowman's capsule, sorry. This whole diagram itself represents what Malpighian body is. It is covering Bowman's capsule and it is covering the glomerulus. And glomerulus is basically what? The connection, interconnection of efferent and afferent arterioles. Okay, efferent arterioles और afferent arterioles में अभी ये भी आएगा कि किसका डायमीटर ज्यादा होता है और किसका डायमीटर कम होता है. तो afferent arteriole इसका डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इसका ज्यादा होता है एंड इसका डायमीटर क्या होता है? कम होता है. Efferent arteriole का. If efferent arteriole takes the blood or takes the things which are have to enter into the Bowman's capsule, and efferent arteriole takes out the things from this Bowman's capsule. ठीक है. So लाने का काम किसका है? Efferent arteriole का, और ले जाने का काम किसका है? Efferent arteriole का. Then glomerulus is what? It is a tuft of thin walled capillaries formed by the branching of efferent arteriole of renal artery, and the efferent arteriole is short and wide that supplies blood to the glomerulus, while the efferent arteriole is narrow and long, carrying the blood away from the glomerulus. See, efferent arteriole का काम क्या है? Blood को glomerulus में लेकर आना, उसको कुछ देर रोकना, and due to this stopping only, it has greater diameter क्योंकि कुछ देर रुक के filtration भी तो करना है. After the filtration, then efferent arteriole will take that blood into further nephron parts. Okay. Then Bowman's capsule. It is double-walled cup-like structure that surrounds the glomerulus. The outer parietal wall of glomerulus is composed of flattened squamous cell and inner wall visceral cell, composed of a special type of less flattened cell called podocytes. Podocytes are basically what? The cells of the Bowman's capsule which carry the glomerulus inside itself. Okay, they are called as podocytes. Then renal tubule. Renal tubule are this one. One is this one, another is this one. जैसे गोला गोला घुमा हुआ है. तो there are two kind of renal tubule. Proximal convoluted tubule यानी कि PCT and distal convoluted tubule यानी कि DCT. मेन तो दो होते हैं, इसमें Henel's loop भी आएगा अभी. ठीक, तो PCT is behind the neck. It meets few coils and is restricted to the cortical region of the kidney. यानी कि ये कहाँ रहेगा? कॉर्टेक्स के पार्ट. ये कॉर्टेक्स के पार्ट तक ये रहेगा. कॉर्टेक्स के पार्ट तक ही PCT रहेगा, उससे नीचे नहीं आएगा. Then Henel's loop है. It is quite narrower and U-shaped, pin-shaped, having a descending limb that ends into the medulla and ascending limb that extends back from the medulla into the cortex. ऐसा जो शेप है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Henel's loop. Henel's loop में क्या होता है? दो चीज. One is the descending limb of Henel and another is ascending limb of Henel. ये कॉर्टेक्स से नीचे लेकर आता है लूप को, डिसेंडिंग लिम्ब, और असेंडिंग लिम्ब क्या करता है? ये वापस से लूप को कॉर्टेक्स के साइड में लेके जाता है. Then difference is there, definition and location between what is receiving fluid thickness. So it is located just after the sharp bend of loop. The second segment है loop Henel का. ये क्या है? Descending loop of Henel is first segment. पहला DCT है, दूसरा ACT है. Then location क्या है? Descending loop of Henel and distal convoluted tubule के बीच में है, ये PCT के बीच में है और ascending loop of Henel के बीच में है. Receiving fluid क्या है? Descending loop of Henel. इसका क्या है? Proximal convoluted tubule. So this is the difference. I will share in the discussion folder also. You can easily learn from there. Distal convoluted tubule क्या है? It is thicker and highly coiled structure situated in the cortex like the proximal tubule. Coils of both convoluted tubules are intermingled. ये PCT से भी ज्यादा coiled है और ये इनर साइड है, कॉर्टेक्स के इनर साइड वाले पार्ट में है, यानी कि मेडुलरी पिरामिड के पार्ट वाले में डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल सिचुएटेड है. ठीक है, ये ज्यादा थिकर होता है और ज्यादा कॉइल्ड होता है. देन कलेक्टिंग ट्यूबुल का है, लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज कॉल्ड कनेक्टिव ट्यूबुल और स्ट्रेट ट्यूबुल. इसमें क्या होता है? जितने भी एब्जॉर्प्शन वगैरह के बाद जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कलेक्ट होके यूरेटर के थ्रू यूरेथ्रा में जाते हैं. देन peritubular capillary network is formed when a minute vessels of peritubular capillaries runs parallel to the root of Henel forming a U-shaped vasa recta. इसकी बात हो रही है ये वाली. ये क्या है? वासा रेक्टा बोलते हैं इसको, और ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी ट्यूब बनाता है जो कि क्या करता है? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है वाया द नेफ्रॉन. ओके. Then types of nephron, basically two type of nephrons are there, cortical nephron and juxtamedullary nephron. 80 to 85% जो हमारा
नेफ्रॉन है वो इसी काइंड का है, इस काइंड का कॉर्टिकल नेफ्रॉन के। बाकी का जो बचा है 10 से 15% वो किस साइड का है, juxtamedullary nephron kind of है। Cortically, majority of nephron, the loop of Henle is too short and extend only very little into the medulla, that is lie in the renal cortex. Such nephrons are called cortical nephrons. Means cortical nephrons में loop of Henle छोटा होता है और बहुत मेडुला में बहुत थोड़ा हिस्सा ही एक्सटेंड करता है और इसमें वासा रेक्टा नहीं होता है। Major difference between cortical nephron and juxtamedullary one is presence of vasa recta. वासा रेक्टा कहाँ है, juxtamedullary वन में वासा रेक्टा है और कॉर्टिकल वाले में वासा रेक्टा एब्सेंट है। लेट मी राइट आल्सो अभी वासा रेक्टा एब्सेंट एंड हियर वासा रेक्टा प्रेजेंट। मेजर डिफरेंस, ओके। एंड इसका लूप ऑफ हेनल बड़ा होगा, इसका लूप हेनल डीपली रन करेगा कहाँ पे, मेडुला में, ठीक है। फंक्शंस ऑफ किडनी, regulation of water and electrolyte balance, regulation of arterial pressure, excretion of metabolic wastes and foreign chemicals, secretion of hormones like renin. Okay, so these are the functions of kidney. Now, easy part. Ureters क्या है, urinary bladder क्या है और urethra क्या है। Ureters, pelvis of each kidney is continued as a ureter and emerges out at hilus. Ureter is long and muscular tube. Ureters of both sides extend posteriorly and opens into urinary bladder. Basically, ureters का काम क्या है, पाइप की तरह काम करते हैं। जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो किडनी से पाइप के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में लाते हैं, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर थिन वॉल्ड है, पियर शेप्ड है, व्हाइट ट्रांसपेरेंट सैक है इन द पेल्विक कैविटी। टेम्पररी क्या करता है, स्टोर करता है किसको, यूरिन को, दैट इज व्हिच इज द नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट इन द ह्यूमन सिस्टम। किसको टेम्पररी कौन स्टोर कर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक। जब ये यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है देन वी गेट द कंस्ट्रक्शन सिग्नल्स एंड थ्रू द यूरेथ्रा इट इज गेटिंग आउटसाइड इन आउट द ह्यूमन बॉडी। देन urethra, membranous tube है which conducts urine to the exterior. The urethral sphincters keep the urethra closed except during voiding of the urine. urethral sphincters present रहते हैं urethra के डाउन साइड एरिया में। जो स्पिंचर क्या रहते हैं, ज्यादा क्लोज रहते हैं। कब रिलैक्स्ड होते हैं, जब हम लोग को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकालना होता है, ओके। देन यूरिन फॉर्मेशन, हाउ अ यूरिन इज फॉर्म। 3 प्रोसेस है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, selective reabsorption and one is third one is tubular secretion. So 3 major processes are there. Just give me a minute, okay. Urine formation, tubular secretion, yes. So starting with this one, glomerular filtration. What does it do? Major filtration जो blood से component का major filtration कौन कराता है, ये glomerular filtration। और ये पूरा कह दो कि मार्पिगियन जो bodies के glomerulus और बोमैंस कैप्सूल, वो दोनों ही मिलके मेजर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। इट इज कैरीड आउट बाय द ग्लोमेरुलस, दैट इज व्हाई दिस स्टेप इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। एक हेल्दी नॉर्मल बॉडी में कौन सा मेजर फिल्ट्रेशन कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। कितने अमाउंट में फिल्टर हो रहा है एक हेल्दी नॉर्मल ह्यूमन से ब्लड का फिल्ट्रेशन, ओके। सो यहाँ पे दिया है एक नॉर्मल डे पे देखो 100 माइक्रोलीटर पर नेफ्रॉन एक दिन में फिल्टर करता है ब्लड के कंपोनेंट्स को। देन टोटल में 170 to 200 लीटर पर डे, यानी कि 170 से लेकर 200 लीटर पर डे फिल्ट्रेशन होता है। बट इतना यूरिन ह्यूमन बॉडी से बाहर जाता है, नहीं जाता। नियरली अबाउट 1 to 2 लीटर एक्सक्रीट होता होगा। सो 98 to 99% of the water gets reabsorbed in the process of filtration, okay. ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इट filter out each and everything like proteins, it filter out the glucose molecule, it filter out the large number of protein particles, okay. So that is why it is also called as ultra filtration. अभी आएगा नीचे। Yeah, in a healthy person, ये लाइन कर दो, yes. यहाँ पे देखो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यहाँ पे मेनली वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलके फिल्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा कर रहे हैं। कैपिलरी फिल्ट्रेशन प्रेशर इतना होता है। यहाँ पे दिया भी हुआ है ग्लूकोज ऑलमोस्ट ऑल चीज थिंग्स आर एब्जॉर्ब, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए एब्जॉर्ब होता है। अभी ये पूरा चीज आएगा, तो पहले ये देख लो। एब्जॉर्प्शन के बाद कहाँ जाएंगे, पीसीटी में जाएंगे, फिर यहाँ से कंसंट्रेशन और ज्यादा बढ़ेगा, फिर वापस से कंसंट्रेशन नॉर्मल आएगा, फिर डिस्चार्ज में जाएंगे, देन कलेक्टिंग डक्ट में जाएंगे। ये सब अभी आगे आएगा प्रोसेस। किडनीज फिल्टर आउट अबाउट 1100 to 1200 milliliter of blood per minute, which constitute roughly 1/5 of the blood pumped out by the each ventricle of the heart in a minute. यानी कि जितना भी ब्लड एक वेंट्रिकल पंप करती है उसका 1/5 पार्ट कहाँ फिल्टर आउट हो जाता है, किडनी में। लेकिन इतना यूज नहीं हो पाता। सेम वही लाइन यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जितना भी फिल्टर आउट करती है या जितना भी फिल्ट्रेट बनाती है, लाइक 170 to 200 जितना भी फिल्ट्रेट बना रही है उतना एक्सक्रीट आउट नहीं होता है। उसका 98 to 99% रीअब्सॉर्ब हो जाता है बॉडी में। ओनली 1 to 2% गेट्स एक्सक्रीटेड आउट, ओके। देन
Glomerular capillary blood pressure causes filtration in the modification of DCT and the blood through 3 layers. किसकी किसकी वजह से मॉडिफिकेशन हो रहा है? 3 लेयर रहते हैं, एक तो एंडोथेलियम, दूसरा एपिथेलियम और तीसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन तीनों लेयर्स की वजह से ही क्या होता है? फिल्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा होता है। एंडोथेलियम क्या रोकता है? इट प्रिवेंट्स द ब्लड कमिंग इनटू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये क्या करता है? ब्लड को प्रिवेंट कर देगा। तब क्या आएगा? सिर्फ ब्लड में नहीं, अगर ब्लड नहीं आएगा तो क्या आएगा? प्लाज्मा आएगा, सिर्फ प्लाज्मा आता है। देन एपिथेलियम में क्या करेगा? प्लाज्मा अगर अब एपिथेलियल लेयर वाले में आ गया तो प्लाज्मा में भी जो बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल, उसको रोक देगा, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या करेगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन सबसे ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन अबव मेंशन 2 लेयर सबसे ऊपर की तरफ होता है। तो इसका काम क्या है? सबसे ऊपर की तरफ है, तो ये मेनली लार्ज प्रोटीन पार्टिकल्स या ड्रग या हार्मफुल पॉइजनस सब्सटेंसेस सबसे पहले उसको रोकता है। ओके, देन दीज 2 लेयर्स कम इन बिटवीन। उसके बाद बोमेंस कैप्सूल को पोडोसाइट क्या करता है? Are the GFR back to normal arranged in such manner so that some minute spaces called filtration slits or slit pores occur between them. पोडोसाइट का काम क्या है? कि GFR को यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को नॉर्मल पोजीशन पे लाना, सच इस लिए लाना क्योंकि हर मिनट पे फिल्ट्रेशन होना है, तो हर बार उसको नॉर्मल पोजीशन पे लाने का काम पोडोसाइट्स का है। और पोडोसाइट्स किसके पार्ट हैं? बोमेंस कैप्सूल के पार्ट हैं, ठीक। On account of high pressure in the glomerular capillaries, the substances are filtered through these pores into the lumen of Bowman capsule, but red blood cells, white blood cell and plasma protein having high molecular weight are unable to pass out. क्यों? क्योंकि जो लेयर्स हैं बोमैन कैप्सूल के, जो पोडोसाइट्स वाले लेयर्स हैं, वो लोग क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, कुछ कुछ चीजों को नहीं आने देते हैं, जैसे कि ब्लड नहीं आता है। प्लाज्मा अगर आ जाता है तो प्लाज्मा में भी जो लार्ज प्रोटीन पार्टिकल वो नहीं आ पाते हैं, तो धीरे धीरे क्या कर देता है? हटाता जाता है अपने सारी चीज को, फिल्टर आउट करते देता है, ठीक। That is why the process of filtration through glomerular capillaries in Bowman's capsule is also known as ultrafiltration, as filtrate is called glomerular filtrate. Ultrafiltration क्यों कह रहे हैं? Because भैया ये तो सब कुछ ही हटा रहा है, ब्लड में हटा दिया, और प्लाज्मा अगर आ रहा है तो उसमें से लार्ज प्रोटीन पार्टिकल भी हटा दिया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल हटा दिया, कभी कभी सोडियम कैल्शियम ये सब भी हटा देता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब क्या है? इट इज हाइपोटोनिक टू यूरिन दैट इज एक्चुअली एक्सक्रीटेड। हाइपोटोनिक टू यूरिन मीन्स कि वाटर का जो इंटरिंग कैपेसिटी है उस टाइम पे क्या हाइपोटोनिक है, कितना भी पानी वो यहाँ पे इंटर कर सकता है, ठीक। बेसिक फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज टू क्लियर आउट प्लाज्मा फ्रॉम अनवांटेड सबस्ट्रेट एंड आल्सो मेंटेन्स द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। बेसिक फंक्शन क्या है? कि प्लाज्मा में जितनी भी चीज है, चाहे वो प्रोटीन, ग्लूकोज, NaCl या कोई ड्रग का पार्टिकल, कोई अनअब्यूज्ड पार्टिकल, कुछ भी, उसको क्लियर आउट करके सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा, सिंपल प्लाज्मा जिसमें वाटर बहुत ज्यादा हो, वो कंटेन करना है। नेफ्रॉन का काम यही है, ठीक। Thus, the fluid coming out is known as urine, whose formation occurs inside the kidney, ठीक। दूसरा प्रोसेस अब क्या आया? वहां से सारा चीज फिल्टर हो गया, फिल्ट्रेट पास हो गया। अब फिल्ट्रेट कहाँ जाएगा? रीअब्जॉर्प्शन के लिए क्योंकि जब सारा चीज क्या हो गया? फिल्टर आउट हो गया, तो कुछ तो चाहिए बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए। तब आता है कौन सा प्रोसेस? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का। सेकेंड स्टेप है इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। देन यूरिन रिलीज, जस्ट गिव मी अ मिनट, यस। The urine release is 1.5 liter as compared to the volume of filtrate formed per day. This is also important. It suggests that as much as 99% of the material in the filtrate is reabsorbed by the renal tubule. देखो कहाँ absorb हो रहा है? renal tubule से जितना भी material है वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे reabsorb होगा। Thus the process is called being as reabsorbed movement into the out of reabsorption. Depending upon the type of molecule, cell segments, passive transport और active transport। देखो ज्यादा से ज्यादा किसके थ्रू होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, सोडियम रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, कुछ एसिड्स जो होते हैं जरूरी होते हैं बॉडी के लिए, वो एसिड्स रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। वाटर एंड यूरिया रीअब्सॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि विदाउट एक्सपेंस ऑफ एनी एनर्जी वाटर और यूरिया रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ऑस्मोसिस के जरिए और डिफ्यूजन के जरिए, यही दो होता है पैसिव वाला। हाँ देखो, ऑस्मोसिस या बाय सिंपल डिफ्यूजन। देन ग्लूकोज और अमीनो एसिड आर रीअब्सॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। Then the reabsorption of sodium ions occurs by both passive and active transport. Then tubular secretion. See, here figure is also there. Tubular secretion, it is also an important step in urine formation. Certain chemicals in the blood that are not removed by filtration from the glomerular capillaries are removed by this process of tubular secretion. Like as I told you, some poisonous substances or harmful chemical substances जो कि filtration में नहीं remove हो पाया, this can be removed here with the help of tubular secretion process. Okay, it helps in maintaining the ionic and acid-base balance of the body fluid by removing chemicals like foreign bodies. पोटेशियम आयंस को, हाइड्रोजन को या अमोनिया को
या कुछ मेडिसिन जो टॉक्सिक होते हैं उसको रीअब्सॉर्ब या उसको हटाने में कौन मदद करता है? ट्यूबुलर सीक्रेशन प्रोसेस। वंस अगेन हियर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखो, कोई भी जो ब्लड है वो आएगा किससे? एफ्रेन एट्रियोल से आएगा। यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, कैपिलरी में क्या होगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। आफ्टर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन व्हाट विल हैपन? यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्टर है वो बाहर यहाँ इस लूप में आएगा, ठीक है। इस लूप में क्या होता है? ग्लूकोज बाहर आ गया, अमीनो एसिड को हटा दिए, सोडियम आयन को भी हटा दिए, बाहर वाटर को भी हटा दिए। सिंपल से क्या हो रहा है? कंसंट्रेटेड प्लाज्मा को नीचे के जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे इस प्रोसेस में? जब वाटर नीचे जाएगा तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? फिर ये लोग रीअब्सॉर्ब करेंगे एवरीथिंग, लाइक सोडियम आयंस को, ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को, ये सब क्या करेंगे? रीअब्सॉर्ब करेंगे। फिर इस प्रोसेस में ट्यूबुलर सीक्रेशंस में देखो जो ड्रग्स हैं या अनवांटेड सब्सटेंसेस वो क्या हो रहा है? वो रिमूव हो रहा है। ये वाले में इससे ब्लड से रिमूव हो रहा है। दिस वन इज वेना कावा, दिस वन इज वेना कावा, तो ब्लड से रिमूव हो रहा है डिफ्यूजन प्रोसेस, एंड दिस वन इज ग्लूकोफेनल। ओके, फिर वही सेम चीज यहाँ से सब कुछ होने के बाद कहाँ आएगा? ये कलेक्टिंग डक्ट में, और नीचे विद द हेल्प ऑफ कलेक्टिंग डक्ट फिर हाइलम में ओपन होगा। कलेक्टिंग एंड हाइलम में ओपन होने के बाद यूरेटर में जाएगा, फिर वहां से बाकी प्रोसेस होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आवर प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कैसे यूरिन फॉर्म हो रहा है, कैसे कहाँ कहाँ उसका एक्सक्रीशन और रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है उसके पार्ट का। ट्यूबुलर सीक्रेशन वर्सेस ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? ट्यूबुलर सीक्रेशन इज प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सॉल्यूट्स एंड वाटर फ्रॉम द ट्यूबुल फ्लूइड। इसमें क्या हो रहा है? इट इज द प्रोसेस रिमूविंग हाइड्रोजन एंड सम आयंस एंड सेवरल टाइप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। देखो इसमें वेस्ट प्रोडक्ट ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन में क्या है? ग्लूकोज वगैरह को रिमूव करना या वाटर को रिमूव करना जो हार्मफुल नहीं है, लेकिन ट्यूबुलर सीक्रेशन में बेसिकली आयंस को रिमूव करना या अनवांटेड सब्सटेंसेस को या पॉइजनस मटेरियल्स को रिमूव करना। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है थर्ड और सेकंड प्रोसेस का। देन पाथवे में फ्रॉम ट्यूबुलर फ्लूइड इनटू द ब्लड, देन फ्रॉम ब्लड टू द ट्यूबुलर फ्लूइड, उल्टा हो रहा है, ठीक है। सब्सटेंसेस, सॉल्यूट्स एंड वाटर, इसमें हाइड्रोजन, क्रिएटिनिन, पोटेशियम आयन, अमोनिया, सम हार्मोन्स, ड्रग्स, ये सारी चीजें। इंपॉर्टेंस क्या है? एसेंशियल आयंस एंड मोर वाटर आर रिटर्न टू द ब्लड एंड क्लींस द ब्लड, ब्लड को क्लीन करता है बिफोर एंटरिंग इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। देन फंक्शन ऑफ द ट्यूबुल, ट्यूबुल का क्या क्या फंक्शन है, यानी कि पीसीटी, डीसीटी, हेनल्स लूप, सब क्या करते हैं? पीसीटी, द एपिथेलियल सेल्स ऑफ पीसीटी हैव न्यूमरस माइक्रोविलाई व्हिच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर रीअब्सॉर्प्शन, यानी कि इसेंशियल चीजों को रीअब्सॉर्ब करने के लिए, ब्लड में रीअब्सॉर्ब करने के लिए, जब उसको हम लोग बाहर निकालते हैं हेनल्स लूप से, तो उसके लिए उन लोग पीसीटी के पास क्या है? माइक्रोविलाई है, जो कि क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ा देता है उस रीअब्सॉर्प्शन के लिए। व्हेनेवर माइक्रोविलाई विल बी देयर, for sure it will increase the surface area, whether it is in the digestive system part, whether it is in the PCT part, कहीं भी होगा। माइक्रोविलाई का काम ही यही है कि सरफेस एरिया बढ़ाना क्या है, और उसमें रीअब्सॉर्प्शन के लिए भी बढ़ाते हैं वो सरफेस एरिया। प्रोसेस ऑफ रीअब्सॉर्प्शन मोस्टली टेक्स प्लेस 65% टेक्स प्लेस विद इन द पीसीटी एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। पीसीटी आल्सो हेल्प इन रीअब्सॉर्प्शन ऑफ HCO3 फ्रॉम द फिल्टर्ड कार्बोनेट आयन, यहाँ रहना चाहिए HCO3-, ओके। Selective reabsorption of hydrogen ions, ammonia, potassium ion takes place here to maintain the pH and ionic balance of the body. यानी कि H+ ions भी reabsorb होते हैं यहाँ पे, अमोनिया भी होंगे, पोटेशियम होंगे, selectively reabsorb होंगे into the blood system. Okay. Then Hennell's loop क्या कहते हैं? Reabsorption in the Hennell's loop is minimum. Besides this, it plays important role in maintaining the high osmolarity of medullary interstitial fluid. Hennell's loop का काम जानते हो? सबसे जब यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है in the vasa recta, Hennell's loop का काम वहाँ आता है, जो ऑस्मोरेगुलरिटी मेंटेन करने का काम होता है, उसका काम वहां आएगा। descending limb of loop of Hennell, water is reabsorbed here due to increasing osmolarity of interstitial fluid, but sodium and other electrolytes are not reabsorbed here. This concentrates the filtrate as it moves down. ये पार्ट क्या बता रहा है कि जब हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म देखेंगे, वो नीचे जाते जाते फिल्टर क्या होता है? कंसंट्रेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी सीधे सीधे बाहर निकल रहा है। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ Hennell में क्या है? ऑस्मोलरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है as whatever the salt materials are there, like sodium ions, electrolytes, they will get absorbed, they will be permeable to this, but they will be impermeable, but permeability of water is high, so water बाहर निकलता चला जाता है और सोडियम, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब क्या है? वो सब उसी फील्ड में रहते हैं, तो वो नीचे जाते जाते और कंसंट्रेट हो जाते हैं। Distal convoluted tubule, okay, this one, ascending limb of loop of Hennell, इसका अपोजिट काम करेगा। This segment is impermeable to water but permeable to potassium, chlorine and sodium ions. Here everything will be in plus sign, okay? Minus, plus, plus sign. Partially permeable to urea. Thus, in the thick ascending limb of loop of Hennell, these two are reabsorbed. मतलब कि अब क्या हो रहा है? अब वाटर अंदर जा रहा है और ये सारे आयंस क्या हो रहे हैं? बाहर की तरफ जा रहे हैं, उल्टा काम करेगा।
Therefore, as the concentrated filtrate pass upward, it will get diluted due to the passing out of the electrolytes into the medullary fluid. DCT, active reabsorption of sodium ions from the filtrate takes place under the influence of aldosterone. Aldosterone हार्मोन है, hormonal influence we have seen है, ADH vasoconstrictor, तो यहाँ काम आएगा DCT vasoconstrictor. Okay. Water is also reabsorbed here with associated secretion of potassium, hydrogen ions, some chlorine ions and hydrocarbonate ion are also reabsorbed here. यहाँ पे देख लो सीधे सीधे क्या क्या हो रहा है. जो PCT है इसमें से न्यूट्रिएंट्स, NaCl, H2O ये सब क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है. मतलब कि जितने भी चीजें हैं वो क्या हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और ये जा कहाँ रहे हैं, बहुत से रेक्टम में डिफ्यूज हो रहे हैं. फिर उसके बाद क्या होगा, नीचे की तरफ आएंगे मेडुलरी पार्ट में, लूकोफेनल में, यहाँ से पानी बाहर निकलेगा, नीचे जाते जाते क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा और इस पार्ट में आके हाईली कंसंट्रेटेड बन जाते हैं यूरिन या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. फिर इस एरिया में यानी कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूकोफेनल में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर जाएंगे और वाटर क्या होगा, अंदर आएगा. परमेबिलिटी टू वाटर इंक्रीज हो जाएगा, इम्परमेबिलिटी टू दीज थिंग्स वो डिक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ पे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो जाएगा और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. यहाँ पे क्या है, डाइल्यूशन कम है, कंसंट्रेशन ज्यादा है. फिर वही चीज ऑपोजिट, जैसे मैंने बताया सेम वही चीज यहाँ डायग्राम में भी लिखा है कि क्या हो रहा है, वापस से इसमें से NaCl, H2O, हाइड्रोकार्बोनेट आयन ब्लड में वापस से क्या होते हैं, reabsorbed हो जाते हैं. एंड द वेस्ट प्रोडक्ट इज हियर कलेक्टेड इनटू द कलेक्टिंग डक्ट. नाउ fourth part is again collecting duct. This duct extends from the cortex of the kidney to the inner part of the medulla and is highly permeable to water. Thus, considerate amount of water is reabsorbed here and under the influence of ADH. ADH is what? Antidiuretic hormone. To produce concentrated filtrate. Sodium ions are also reabsorbed here as a release of aldosterone, which increases the permeability of the wall of DCT. Okay. And then osmoregulation. Osmoregulation का मतलब क्या है? To maintain the normal water level inside the body of a human. उसको बोलते हैं osmoregulation. और osmoregulation होता है कैसे है? वही सेम प्रोसेस PCT के थ्रू, BCT के थ्रू और ये पूरे नेफ्रॉन के वर्किंग के थ्रू क्या होता है, osmoregulation होता है. Basically, kidney perform the process of osmoregulation. Whenever we take any salty food, whenever we take any food that is more acidic or that is more basic, तो हमारे बॉडी पे कुछ इफेक्ट होता है, तब भी हमारा बॉडी नॉर्मली फंक्शन करता है बिकॉज इट मेंटेन्स द नॉर्मल ऑस्मोरेगुलेशन. वो किडनी फिल्टर आउट कर देता है उस सारे एसिड क्या है, उस सारे बेसिक जो भी चीज ज्यादा होगी वो किडनी बेसिकली फिल्टर आउट कर देता है और मेंटेन करता है ऑस्मोरेगुलेशन को. ठीक है, तो osmoregulation, the composition of body fluid is influenced more by the output through the kidneys rather than intake by the gut internal environment. Whatever we are taking, thus osmoregulation is getting maintained by the kidney. By means of a regulated production of urine from the blood, the nephrons carry out the dual process of excretion and osmoregulation. The two types of nephrons differing both in their position in kidney and in the length of glucofenil play an important role in osmoregulation. यानी कि cortical nephrons और juxtamedullary nephron दोनों ही osmoregulation का काम करते हैं and nephrons are basically the part of kidney. Therefore, we can say kidneys play a very important role in the process of osmoregulation. Now, counter current mechanism यही है जहाँ पे higher osmoregularity और कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है, फिर कहाँ से घटना शुरू होता है, that we will see. Okay, kidneys of the higher vertebrates such as mammals, birds and man has the ability of absorbing more and more water from the tubular filtrate to conserve water and make the urine more concentrated. This can be achieved by special mechanism which is known as counter current mechanism. The basic concept क्या क्या है, देखो इसमें क्या क्या होता है. Henle loop and vasa recta इसमें बहुत important role play करते हैं mechanism में. The flow of filtrate in the limbs of Henle's loop in the opposite direction and thus forms a counter current. The flow of blood within the two limbs of vasa recta also occurs in the counter current pattern. क्या बोल रहा है इसमें, बेसिकली जो हमारा ब्लड का ऑस्मोरेगुलेशन है, ब्लड बेसिकली हैज 300 मिलीलीटर ऑफ वॉल्यूम या मिली ऑस्मोमीटर. ओके, तो यहाँ तक तो 300 रहता है ब्लड में भी. जब ब्लड से फिल्टर आउट होकर पास होता है यानी कि पीसीटी में आता है, देन ऑल्सो इट रिमेन्स अबाउट 300. आफ्टर दैट as it is passing through the descending limb of loop of Henle, वाटर बाहर जा रहा है. अभी हमने देखा तो जब वाटर बाहर जा रहा है और NaCl और इलेक्ट्रोलाइट्स अंदर ही रह रहे हैं, तो जैसे जैसे ये मूव करेगा द कंसंट्रेशन विल गेट इंक्रीज. पहले 600 आएगा, फिर 800, फिर 1000, फिर 1000, 1200, यहाँ तक का आते आते कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. अब कुछ नहीं बचा है. ठीक, अब क्या होगा, एज इट स्टार्ट्स मूविंग इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ Henle, अगेन वाटर की परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, वाटर विल गेट इनसाइड
and the electrolytes will get outside of this ascending limb of loop of canal. अब वैसे ही वापस से क्या होगा, ये डाइल्यूटेड हो जाएगा, यहाँ से 600, 400, 300, 200 वापस से डाइल्यूशन शुरू हो जाएगा. देन NaCl और H2O क्या होगा, यहाँ पे ट्यूबुलर सीक्रेशन का प्रोसेस होगा, जो बाकी अनवांटेड सब्सटेंसेस है वो भी क्या होंगे, रिमूव आउट होंगे इनटू द ब्लड स्ट्रीम यानी कि वासा रेक्टा में, और NaCl और H2O जो काम का चीज है वो वापस से ये हमारी यूरिन के फॉर्मेशन में आएगा. देन अगेन इट विल मूव इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, फिर वहां से सेम 98 to 99% क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में देखो वाटर अब्सॉर्ब हो जाएगा. यहाँ एक और हम लोग को बनाना चाहिए था, ये वासा रेक्टा वाला देखो यहाँ बना है सेपरेटली, लेकिन ये दोनों अटैच होता है एक दूसरे से, ठीक है. तो ये वाटर कहाँ अब्सॉर्ब हो जाता है, इसमें, ये वासा रेक्टा वाले में अब्सॉर्ब हो जाता है. वासा रेक्टा इज बेसिकली अ ब्लड कैपिलरी वेयर एवरीथिंग इज गोइंग एंड अब्सॉर्ब्ड, और जितना भी चीज है यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यूरेटर में. अब आता है दूसरा कंडीशन, ये था नॉर्मल फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट, व्हेन नॉर्मल वाटर इज देयर, वाटर की कमी नहीं है, वाटर सफिशिएंट है, ठीक है, वाटर इज सफिशिएंट, तब ये नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता है. नीचे जाएगा, कंसंट्रेशन घटेगा, फिर ऊपर आएगा, कंसंट्रेशन वापस डाइल्यूशन होगा, फिर वो रीअब्सॉर्प्शन एंड एवरीथिंग. ओके, अब दूसरा केस क्या है, वासा रेक्टा वाला, जहां पे हमारे बेसिक एरिएज काम करता है. ये व्हेन वाटर इज लेस, मान लो हम लोग नॉर्मल डेज में पानी कितना पीते हैं, लेकिन मान लो रमजान आ गया या रोजा रख रहा है कोई, या कोई व्रत रख रहा है, ठीक है. इन दैट केस वी डोंट ड्रिंक दैट मच ऑफ वाटर. देन व्हाट हैपेंस, वाटर हैज टू गेट कंजर्व्ड and urine has to get excreted out. Then most of the reabsorption of water is done in the form of from the collecting duct and with the help of the chemical released by the ADH. ADH basically hypothalamus में सिग्नल भेजता है, फिर वहां से क्या होता है, एंटीडायरेटिक हार्मोन रिलीज होते हैं, फिर वहां से क्या होता है, वैसोकंस्ट्रिक्टर प्ले करता है पार्ट, और फिर वो लोग क्या करेंगे, जितना भी इलेक्ट्रोलाइट्स है वो वासा रेक्टा से बाहर निकालेंगे, एंड मोस्ट ऑफ द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इज डन हियर, ठीक. तो इस वाले लाइन में क्या होता जाता है, उल्टा होगा, ठीक. NaCl वगैरह देखो, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ वासा रेक्टा में क्या होगा, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट्स का यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, जहां तक जाता जाएगा सेम वही 300, 400, 800, 1000, 1200, 1200. उसके बाद यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ वासा रेक्टा में क्या होगा, कंसंट्रेशन वापस से डाइल्यूट होगा, ठीक. और डाइल्यूट होगा, मोस्ट ऑफ द वाटर विल गेट रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, एंड हेंस वी डोंट यूरिनेट most of the time when we are very hungry, when we are keeping fast, or when we are having a व्रत, anything, ऐसा कोई भी सिचुएशन जिसमें हम लोग पानी बहुत कम पी रहे हैं, then वासा रेक्टा विल एक्ट अपॉन. उसमें क्या होता है, सेम नेफ्रॉन का उल्टा, ठीक. नेफ्रॉन का उल्टा क्या, उसमें क्या कर रहा था, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडल में वाटर बाहर जा रहा था और इलेक्ट्रोलाइट्स कंसंट्रेशन बढ़ा रहे थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, असेंडिंग वाला ये काम कर रहा है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा ये सारा काम कर रहा है. फिर वही सेम अपोजिट, तो दोनों के केस में ही ये ऑस्मोलर ड्यूअलिटी मेंटेन रहती है, काउंटर करंट मैकेनिज्म मेंटेन रहता है, कंसंट्रेशन से डाइल्यूशन आना है, और कब कहाँ कितना एब्सॉर्ब होना है. ओके, एनी डाउट इन दिस होल कॉन्सेप्ट? नो मैम. ओके, देन द ऑस्मोलर ड्यूअलिटी पर लीटर इज द सेम, वही पूरा लाइन अब लिखा है, as in the tissue but no interstitial, fibula is hypogradient, वही same. Each and every line is written same. I have explained you. So peak to process counter current by Henel's loop, counter current by वासा रेक्टा. रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, यानी कि किडनी फंक्शंस को कौन कौन रेगुलेट करता है. तीन चीज मेन इंपॉर्टेंट होती हैं जो रेगुलेट करते हैं, ठीक. तो दो तो एक तरह से काम करेंगे, हाइपोथैलेमस वाला और JGA, जेक्स्ट्रामेडुलरी apparatus, एंड ये एट्रिनर्जियल फैक्टर ये अलग तरह से काम करता है, ठीक है. तो in this figure you can see कि ADH का क्या काम होता है. ADH is basically the part of pituitary gland. It will increase the permeability, जहाँ पे क्या होता है, water reabsorption, prevent further dehydration. Further dehydration कौन prevent करा रहा है, ADH, in the case of water stress conditions in the kidney. Okay, and osmoreceptors कहाँ होते हैं, हाइपोथैलेमस में. सिग्नल कहाँ से आता है, हाइपोथैलेमस से इसको जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ADH को. ADH क्या काम करेगा, वाटर रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस बढ़ा देगा जिससे डिहाइड्रेशन ना हो, ठीक है. Thirst, drinking reduces blood osmolality. देखो जब भी ये काम करेगा ADH, ये कब काम करेगा, वाटर स्ट्रेस कंडीशन में, whenever we are not drinking sufficient amount of water. तो सेम वही रेगुलेशन यहाँ पे भी है. Regulation by hypothalamus, excessive loss of fluid from the body activates osmoreceptors present in blood vessels of the hypothalamus, thus stimulating it to release ADH or vasopressin. ADH का दूसरा नाम vasopressin we know.
फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी कि पिट्यूटरी के ग्लैंड से। ADH releases increase water reabsorption from the distal convoluted tubule as increase in the body volume fluid switches of the micturition reflex यानी कि हम लोग का micturition जो reflex है वो धीमा कर देता है। Whenever we are having water stress condition, micturition process itself decreases. The osmoreceptors and the suppressors suppresses the ADH release to complete the feedback. ADH also causes constrictory effects on the blood vessels of glomerulus, thus increasing the pressure. For an adult man normally passes out 1 to 1.5 liter of urine per day. Okay. Then regulation by JGA or its system is also known as RAS system. यानी कि renin angiotensin angiotensin system, angioten and angiotensin system, RAS basically. So what does happen? What does this do? Same thing. जब water stress condition होता है तब भी ये JGA काम करते हैं। दो तरह से काम करता है जब water stress condition होगा। As blood pressure या GFR decreases, the cells of the JGA release enzyme renin. कब काम करेगा? जब BP हम लोग का कम होगा या GFR क्या होगा? कम होगा, GFR या ब्लड वॉल्यूम कम होगा। ये तीनों ही कंडीशन में JGA क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। यानी कि RAS सिस्टम क्या रिलीज करता है? एंजाइम रेनिन। रेनिन के में क्या होता है? Renin converts angiotensinogen in the blood into angiotensin first and then first converted into second angiotensin second. अब ये जो second form है ये बहुत एक्टिव होता है। This mechanism is generally known as renin angiotensin aldosterone system या mechanism. इसमें क्या हो रहा है? JGA जब एक्टिव होगा तो JGA क्या करेगा? It will release renin. फिर renin के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा? renin के प्रेजेंस में बनेगा angiotensin फर्स्ट। फर्स्ट का कोई काम नहीं होता तो वो सेकेंड में कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन सेकेंड। तो ये बहुत एक्टिव होता है। तो यही एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस सिग्नल भेजता है। ठीक है, तो दिस वन इज द एक्टिव फॉर्म। और इसी मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, क्योंकि ये अपना सिस्टम कहाँ भेजेगा? एल्डोस्टेरोन रिलीज के लिए भेजेगा अपना सिग्नल। एंजियोटेंसिन हैज फॉलोइंग इफेक्ट। क्या क्या इफेक्ट करेगा? रेजेस ब्लड प्रेशर बाय कंस्ट्रिक्टिंग ब्लड वेसल्स। ठीक है, एंड इसकी बात हो रही है, इसका क्या क्या काम है? एक्टिवेट्स द एड्रेनल कॉर्टेक्स टू रिलीव एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कॉजेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर फ्रॉम द DCT। सेम वही चीज करने लगेगा जो ADH कर रहा था। देन दिस आल्सो लीड्स टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड GFR रेट। वही प्रोसेस यहाँ पे भी है। देखो, जब डिहाइड्रेशन होता है या डिफिशियंसी होती है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है या ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो ये एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव होने के बाद रेनिन रिलीज करेंगे। फिर ये एंजियोटेंसिनोजन लीवर से आके क्या बना लेंगे? एंजियोटेंसिन फर्स्ट। फिर वहां से सेकेंड बनता है। फिर ये सेकेंड क्या कर रहा है? वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है आर्ट्रियोल्स का। फिर ये लोग सिग्नल भेज रहे हैं। एक मिनट, सबसे पहले यहाँ जाएगा एड्रेनल कॉर्टेक्स के पास। एड्रेनल कॉर्टेक्स ही तो रिलीज करता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन को। फिर ये हार्मोन जब रिलीज होगा तो किडनी में जाके क्या करेगा? सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, इंक्रीज करेगा। देन ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और वही सेम चीज वैसोकंस्ट्रिक्शन होने से दोनों काम हो रहा है। बेसिकली इनका काम क्या है? जब ब्लड प्रेशर कम है या GFR कम है या ब्लड वॉल्यूम कम है तो उन सबको इंक्रीज कराना और नॉर्मल पोजीशन पे लाना, ये JGA का काम होता है। और ये पाथवे को हम लोग कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे। ओके, रेगुलेशन बाय हार्ट या एट्रियोनाट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर प्रोड्यूस्ड बाय द एट्रिया ऑफ द हार्ट व्हेन। देखो, अब ये उल्टा काम करेगा। अभी हम लोग देख रहे थे, अब इसमें ब्लड वॉल्यूम जब कम होगा, कम नहीं ज्यादा होगा, इसमें जब ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा या GFR ज्यादा होगा या एक और चीज क्या ज्यादा हो रहा था? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जब ये ज्यादा होगा तो क्या करेगा? फिल्ट्रेशन रेट को बहुत जल्दी बढ़ा देगा। फिल्ट्रेशन रेट को क्यों जल्दी बढ़ा रहा है? कि ब्लड से हार्ट से क्या हो रहा है? ब्लड जल्दी जल्दी फ्लो होगा, फिल्ट्रेशन रेट अपने आप बढ़ जाएगा। और जब किसी चीज का ज्यादा होता है तो क्या होता है? इट विल क्रिएट अ डिसीज आल्सो, इट कैन कॉज द डिसीज। रेगुलेशन बाय द हार्ट, इट कैन इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम, GFR रेट एंड ब्लड प्रेशर जब ज्यादा होता है तो इसका काम होता है। ठीक है, ये इनहिबिट कर देता है सोडियम एंड कैल्शियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन। और DCT में जो काम कर रहे थे JGA और ये ADH वाले रीअब्जॉर्ब कर रहे थे, लेकिन ये क्या कर रहा है? इनहिबिट कर देता है, यानी कि ब्लड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है? ये हाई ब्लड प्रेशर में लोगों को बार बार मिक्यूरेशन की फीलिंग आती है, तो इट इज ड्यू टू द एट्रियोनाट्रियूरेटिक फैक्टर। ओके, देन मिक्यूरेशन बेसिकली पासिंग आउट द यूरिन फ्रॉम outside the body is called as micturition. Urine is produced and drained continuously by the nephron into the renal pelvis. From here it is carried down to the ureters. Urinary bladder considered urine when there is shortage of water. The bladder serves the stored urine temporarily till the voluntary signal is given by central nervous system. Urine, adult man में कितना urine
पास आउट करता है 1 to 1.5 लीटर पर डे यूरिन पास आउट करता है एडल्ट मैन। कॉम्पोजिशन क्या है? 95% रह रहे हैं, 95% ऑफ वाटर, देन सॉल्ट 2%, यूरिया इतना। कॉम्पोजिशन नहीं पूछता, इसका कलर में भी हैव बीन आस्क्ड ड्यू टू द पिगमेंट यूरोक्रोम। देन पीएच भी पूछता है। ऑर्डर अनप्लीजेंट इफ फॉलोड बाय स्ट्रॉन्ग स्मेल लाइक अमोनिया, अमोनिया की वजह से स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। लीस्ट कंसंट्रेशन, सो दिस इज ऑल अबाउट यूरिया एंड इट्स कंसंट्रेशन फॉर्म। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स लाइक लंग्स क्या रोल प्ले करता है? लंग्स का काम क्या है? अभी हमने क्या देखा, जब एंजियोटेंसिन को कन्वर्जन चाहिए एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में आने के लिए, तो लंग्स वहां पे काम आता है। ठीक है, इसके अलावा भी और कोई काम होगा? लंग्स कार्बन CO2 and water are the base product formed in respiration. Lungs remove CO2 and some water as vapor in the expired air. About अच्छा एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट, यहाँ पे मेन बात क्या हो रहा है लंग्स के बारे में कि इट इज ऑल्सो रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ह्यूमन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेस क्या है ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। Then liver, it changes the decomposed hemoglobin of the worn out red blood spots into the bile pigment, bilirubin and biliverdin. मतलब कि जो डेड एंड वर्न आउट रेड ब्लड सेल्स उसको रिमूव करने का काम कौन करता है? लीवर। स्किन, द स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड ऑयल रिमूव करता है ह्यूमन की बॉडी से, स्वेट ग्लैंड स्वेट रिलीज करता है ह्यूमन की बॉडी से, which are also a kind of excretory product. Okay. Then intestine, epithelial cells of colon excrete excess salt of calcium, magnesium, iron along with the feces. जो feces रिलीज होते हैं उसमें कैल्शियम आयन या सॉल्ट आयन जो भी एक्सेस में रहेगा वो भी इंटेस्टाइन के जरिए रिमूव होता है। सैलिवरी ग्लैंड एक्सक्रीट करते हैं सलाइवा को। Then what are the important metabolic wastes and substances which are excreted down? You can see them. What are the excretory products? Disorders is uremia, presence of excessive amount of urine into the blood. ठीक है, यूरिया इज हार्मफुल एंड पॉइजनस है। जब ज्यादा अमाउंट में यूरिया आ जाता है तो इट कैन कॉज द किडनी फेलियर। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, नहीं ब्लड प्रेशर कम होता है तो यूरेमिया की कंडीशन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद किडनी फेलियर, रीनल फेलियर, जब किडनी ही नहीं काम करेगा तो ये क्या है? डिसऑर्डर एबिलिटी है, पार्शियल या टोटल इनएबिलिटी ऑफ किडनी टू कैरी आउट एक्सक्रीटरी एंड सॉल्टी रेगुलेटरी, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन या किडनी का काम ही नहीं करेगा तो डिसीज तो है ही ये। रीनल कैल्कुलाई इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट इन विद इन द किडनी। किडनी के अंदर ही कोई इनसॉल्युबल फॉर्म या स्टोन क्रिएट हो जाता है जिसको हम लोग रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं, बेसिकली हिंदी में पथरी बोलते हैं लोग। ठीक, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। किडनी की जो ग्लोमेरुलस पार्ट होते हैं उनमें क्या होती है? स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेट कर जाते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव थर्स्ट एंड फ्रीक्वेंट मिक्यूरेशन। ये क्यों होता है इंसिपिडस? जब डायबिटीज इंसिपिडस होता है यानी कि हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को बार बार मिक्यूरेशन का प्रोसेस करना पड़ता है सामना, बिकॉज दे हैव हाई ब्लड प्रेशर। उस रेट में बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन होता है, और जितना ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा उतना ज्यादा मिक्यूरेशन अर्ज होगा। Then urine excreted is severely diluted. There are several type of diabetes insipidus, each with a different cause. बहुत सारे तरीके होते हैं। आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस, ये रेमेडी है एक तरह से कह लो। आर्टिफिशियल किडनी मशीन के थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट एक ह्यूमन के बॉडी से बाहर जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोडायलिसिस। ओके, आर्टिफिशियल किडनी इज अ मशीन that is used to filter the blood to remove urea and other nitrogenous waste of a person whose kidneys are damaged. तब भी वो क्या है? दैट पेशेंट इज टिपिकली जस्ट लिविंग ऑन द बेड एंड नथिंग एल्स। उस केस में भी हीमोडायलिसिस से प्रोसेस पूरा करता है। इंसान को हमेशा तब भी बेड पे ही रहना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस, डिफ्यूजन ऑफ स्मॉल सोल्यूट पार्टिकल्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेलोफेन। ये पूरा काम बताया कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, ब्लड पेशेंट्स का पंप हो जाता है एक आर्टरी से और डायलिसिस यूनिट यानी कि हीमोडायलिसिस में चला जाता है। फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे कूल होने पर ये एंटीकोगुलेंट यानी हेपेरिन के साथ मिक्स होता है। वो मशीन में ही पूरा सिस्टम होता है कि कहाँ किससे मिक्स होना है। ठीक है, हीमोडायलिसिस सेलोफेन ट्यूब होता है सस्पेंडेड इज अ डायलाइसिंग फ्लूइड ऑफ द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, उसी सेम फ्लूइड का एक केमिकल सब्सटेंस रहता है, उसी मशीन में रहता है जहां से वो पास होता है। फिर सेलोफेन के जो ट्यूब रहते हैं पोर्स, वो अलाउ करते हैं मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन को, जो बॉडी से फ्लूइड यानी कि ब्लड गया है उस कंसंट्रेशन में, वही सेम काम करते हैं जैसे कि नॉर्मल किडनी का फंक्शन रहता है। ठीक, ये क्या क्या रिमूव करते हैं? नाइट्रोजन वेसेस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, एक्सेस सॉल्ट एंड एक्सेस हाइड्रोजन आयन concentration get diffused from the blood into the surrounding solution. Thus, the blood is cleared of the lung in the expired air. Nitrogenous waste product without losing plasma protein. यानी कि ब्लड साफ हो जाता है और जितना भी ब्लड का एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट था वो उस सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस के थ्रू चला जाता है। Then the blood thus purified is warmed to the body temperature, checked to ensure that it is isotonic to the patient's blood.
Now the blood is mixed with antiheparin to restore its normal clotting power and pumped back into the body of the patient through a vein, usually the radial vein. अब क्या हो रहा है, ब्लड को प्यूरिफाई कर लिए हैं विद द हेल्प ऑफ कोई वहां रहता है इस काम को पूरा करने के लिए, चेक करने के लिए, ठीक है। तो ब्लड को क्या हो रहा है, जब प्यूरिफाई हो जाता है तो उसको वापस से उसको चेक करते हैं कि हाँ हेमंत के ब्लड के नॉर्मल लेवल पे आया है। जब नॉर्मल लेवल पे आ जाता है तो उसको वापस से रेडियल वेन या वेन के थ्रू उसके बॉडी में वापस भेजते हैं। तो ये सब मैनुअली और आधा लोग करते हैं और बाकी चीज मशीन में होता है। बिना मैनुअल डिस्क्रिप्शन दिए मशीन काम नहीं करेगा, ठीक। रीनल किडनी या ट्रांसप्लांटेशन, ग्राफ्टिंग किडनी फ्रॉम अ compatible donor to restore kidney function in a recipient suffering from kidney failure is called renal और किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ये सबसे ज्यादा रिस्की ट्रांसप्लांटेशन होता है बिकॉज देयर आर 6 to 7 लेयर्स ऑफ मैचिंग रिक्वायर्ड, और इतना मैचिंग रिक्वायरमेंट बहुत मुश्किल से ही मिलता है। बहुत क्लोज स्पीशीज या क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाले लोगों का ही ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन मैच करता है। इवन इफ द किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज डन, समटाइम्स इट हैज बीन सीन कि उसके बाद भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता बॉडी उस किडनी ट्रांसप्लांटेशन को, उसके बाद भी डेथ का बहुत चांसेस रहता है, ठीक। लिविंग डोनर कैन बी यूज्ड एज अ किडनी ट्रांसप्लांट इन मे बी आइडेंटिकल ट्विन या सिबलिंग, ए क्लोज रिलेटिव, टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। To prevent the rejection of transplanted kidney, special drugs are also used which suppresses the recipient's immune system. Okay, so this is how the chapter gets completed. Tomorrow I will start the circulatory system. Any doubt in this whole chapter?